بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 3 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں اجازت، مصنف محی الدین نواب، آواز نوشین۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 پہ محمد اظہر سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 3۔ اوہ کہہ کر منہ پھیرنے اور دور جانے میں پاس بلانے کی ترغیب تھی۔ ایک چیلنج تھا، منا سکتے ہو تو کسی طرح منا لو۔ صفحہ نمبر 29۔ بس آگے بڑھ گئی۔ اس نے بھی موٹر سائیکل سٹارٹ کی۔ اسے تیز رفتاری سے آگے بڑھاتا ہوا پہلے بس کے پیچھے چلنے لگا، پھر بس کے برابر ہو گیا، جدھر زنانہ درجہ تھا۔ اس دروازے کی طرف پہنچ گیا۔ وہ نظر آ رہی تھی اور 4 عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ بس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے دروازے کے قریب ہی تھی۔ موٹر سائیکل کی آواز سنتے ہی اس نے چونک کر دیکھا، پھر کامران کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یوں گھبرانے لگی جیسے خواہ مخواہ ہونے والی بدنامی کا ڈر ہو۔ وہ بس دوسرے سٹاپ پر رک گئی۔ وہ بھی رک گیا۔ کچھ مسافر اترے، کچھ مسافر سوار ہوئے۔ بس پھر آگے بڑھ گئی۔ اس نے بھی موٹر سائیکل کی رفتار اس کے برابر کی اور زنانہ درجے کے دروازے کی طرف پہنچ گیا۔ مونا اسے دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اس کی طرف سے منہ پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگتی تھی۔ کنڈکٹر نے دروازے کے پاس آ کر پوچھا، اے بھائی، کیوں بس کے ساتھ ریس لگا رہے ہو؟ کیا مرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے موٹر سائیکل کی رفتار کو برقرار رکھتے ہوئے مونا کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے کہا، میں مرنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ، میں جینا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ کنڈکٹر نے چونک کر کہا، ارے کیوں مسخری کرتا ہے؟ ہمارے اندر کیا خوبی ہے؟ کیا ہمارے ساتھ جینا چاہتا ہے؟ ہمارے ساتھ مرنا چاہتے ہو؟ بھائی ادھر سے جاؤ، منی بس کے ساتھ ریس لگاؤ، وہ تمہیں مزہ چکھائے گا۔ میں جس کے ساتھ ارادہ کر لیتا ہوں اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتا ہوں۔ وہ بھاگنا چاہے، دوڑنا چاہے تو میں اس کے ساتھ دوڑنا جانتا ہوں۔ مونا سن رہی تھی اور اس سے نظریں ملانے سے کترا رہی تھی۔ وہ بس پھر ایک سٹاپ پر رک گئی۔ اس بار کامران نہیں رکا۔ موٹر سائیکل کو تیزی سے دوڑاتا ہوا آگے نکل گیا۔ مونا نے اسے دور جاتے ہوئے دیکھا تو اطمینان کی سانس لی۔ وہ بس پھر آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اسے کنڈکٹر کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، ارے بھائی تم پھر آ گئے۔ صفحہ نمبر 30۔ میں آتا رہوں گا، ہمیشہ آتا رہوں گا۔ جو خطاوار ہوتے ہیں وہ منہ چھپاتے ہیں۔ میں نے کوئی خطا نہیں کی ہے۔ کنڈکٹر نے بس ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے آواز دی، استاد سائڈ مارو، ایک بندہ مرنا چاہتا ہے۔ ویسے بھی کراچی کے ڈرائیور بندے مارنے میں مشہور ہیں۔ یہ سنتے ہی ڈرائیور نے بس کی رفتار تیز کر دی، پھر اسے دائیں بائیں گھمانے لگا۔ یقیناً وہ سائڈ مارنا چاہتا تھا۔ مونا نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ موٹر سائیکل کو اسی کی طرح دائیں بائیں گھماتا آ رہا تھا۔ بس اس کے قریب آنا چاہتی تو وہ ذرا دور ہو جاتا، بس دوسری طرف گھومتی تو وہ اس کے قریب چلا آتا۔ ایک بار یوں لگا جیسے وہ موٹر سائیکل کا توازن قائم نہ رکھ سکا ہو، بس سے ٹکرانے ہی والا ہو۔ مونا نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحوں تک اس کا دل دھڑکتا رہا، یہی سمجھ میں آتا رہا کہ اب تک اس کے حادثے کی خبر سنائی دے گی، لیکن اس کا قہقہا سنائی دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، واہ صاحب کیا ادائیں ہیں، خود تو نفرت سے مارتے ہو، ہم مرنا چاہیں تو محبت سے
आंखें बंद कर लेते हो। बस एक अस्पताल के स्टॉप पर रुकने लगी। वो मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाता हुआ दूर निकलता चला गया, ताकि वो आगे बढ़ेगी तो फिर उसके साथ रेस लगाएगा। 1 मिनट के बाद ही वो अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। उसने फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट की और उसे आगे बढ़ाने लगा। थोड़ी देर बाद वो बस के बराबर रेस लगा रहा था। जनाना दर्जे के दरवाजे के पास पहुंचकर देख रहा था। वो नजर नहीं आ रही थी, शायद उसे बैठने के लिए सीट मिल गई। वो मोटरसाइकिल की रफ्तार कभी घटाते हुए कभी बढ़ाते हुए सीटों की तरफ देखने लगा। इसके बावजूद वो नजर नहीं आई। कुछ सीटें ऐसी थीं जो बाहर से नजर नहीं आती थी, हो सकता है उनमें से किसी सीट पर बैठी हो। एक और स्टॉप आ गया। गाड़ी वहां रुकी तो उसने मोटरसाइकिल को एक जगह रोककर जनाना दर्जे के पास आकर देखा। कुछ औरतें उतर रही थीं, कुछ सवार हो रही थीं। सफा नंबर 31। वो दौड़ता हुआ मर्दाना हिस्से में पहुंचा, फिर वहां से चढ़कर जनाना दर्जे की तरफ देखने लगा। वो मौजूद नहीं थी। यूं लगता था जैसे देखते ही आंखों के सामने से गायब हो गई हो। लेकिन वो गायब कैसे हो सकती थी? वो उसे देखता आ रहा था, यकीनन पिछले स्टॉप पर उतर गई होगी। बस आगे बढ़ने लगी। वो जल्दी से नीचे उतर गया। मायूसी से चलता हुआ मोटरसाइकिल के पास आया, फिर उसे स्टार्ट करके पिछले स्टॉप की तरफ जाने लगा। पिछली मंजिल में यह मालूम करना बहुत मुश्किल था कि वो कहाँ गई है। एक तरफ बड़ा सा अस्पताल था, दूसरी तरफ स्कूल, और स्कूल के साथ ही एक बहुत बड़ी इमारत थी। उसमें मुख्तलिफ दफातर थे। अब वो इन दफातर में कहीं काम करती थी, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, या अस्पताल में मुलाजमत करती थी। वो क्या करती थी, कहाँ गई थी? उसने बारी बारी तमाम जगह तलाश करना शुरू किया। वो 10 बजे इस स्टॉप पर पहुंचा था। 2 बजे दोपहर तक उसे ढूंढता ही रहा, मगर वो नजर नहीं आई। उसे थक हार कर वापस आना पड़ा। उसने फैसला कर लिया, अगले रोज वो मोटरसाइकिल को बस के पीछे दौड़ाता रहेगा, आगे नहीं जाएगा और देखता रहेगा कि किस स्टॉप पर उतरकर कहां जाती है। इस तरह 5वां दिन गुजरने लगा। 6ठे दिन वो बस स्टॉप पर खड़ा रहा, लेकिन वो अपने घर से निकलती हुई गली से गुजरती हुई या बस में सवार होती हुई नजर नहीं आई। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, मोहब्बत के जुनून में इजाफा होता जा रहा था। वो परेशान होकर सोचता था, आखिर कहाँ गुम हो गई, क्यों नजर नहीं आती? अगर वो बीमार हो गई है तो मैं उसके घर जाकर दवा नहीं कर सकता, दुआ कर सकता हूँ कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। दुआ कर सकता हूँ कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहती, उसकी बीमारी ही मुझे मिल जाए ताकि वो चलती फिरती नजर आए। दिन गुजरते जा रहे थे। वक्त धमकी दे रहा था कि जल्दी गुजर जाएगा और छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। वो सुबह निकलता था और तमाम दिन मारा मारा फिरता था। कभी बस स्टॉप के पास जाकर खड़ा हो जाता था, कभी उस चूड़ियों की दुकान के पास पहुंचकर घंटों इधर देखता रहता था। क्या वो कभी चूड़ियां पहनने भी नहीं आएगी? एक दिन उसकी मम्मी ने पूछा, तुमने ये क्या हालत बना रखी है? कम से कम शेव कर लिया करो। सफा नंबर 32। अच्छे कपड़े पहना करो, आज लड़की वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। बहुत बड़ा घराना है, उनकी इकलौती लड़की है। माँ बाप के बाद सारी दौलत और जायदाद उसी की होगी। मुझे दौलत और जायदाद नहीं, सिर्फ शरीके हयात चाहिए। हाँ हाँ,
मैं खूब समझती हूँ, उसी के पीछे दीवाना बना घूमता रहता है। क्या हालत बना ली है अपनी। 15 दिन गुजर चुके हैं, छुट्टी के सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। अब जाएगा तो पता नहीं कितने वर्षों के बाद आएगा। मैं इस बार बहू ला कर रहूंगी, अब मुझसे घर की जिम्मेदारियां संभाली नहीं जाती। उसी वक्त एक औरत बुर्का पहनकर ड्राइंग रूम में आई। उसकी मम्मी ने पूछा, ए बहन, तुम कौन हो? उसने बुर्का उतारते हुए कहा, लो पहचान लो। वो एक बूढ़ी औरत थी। उसे देखते ही मम्मी ने कहा, हे ये तुम हो, आज बुर्का क्यों पहन लिया? क्या करूं बहन, मैंने तुम्हारे बेटे का रिश्ता लगाया है इस मोहल्ले में और 2-4 लड़के वाले हैं, सब यही कहते हैं हमें उसी दौलतमंद लड़की का रिश्ता चाहिए। इसे कहते हैं एक अनार और 100 बीमार। उसकी मम्मी ने कहा, सुन रहे हो कामी, उस लड़की के लिए दुनिया दीवानी है। ये तो हमारी बुआ की मोहब्बत है कि ये रिश्ता हमारे लिए रोक रखा है। बुआ ने कहा, इसलिए आज बुर्का पहनकर आई हूँ। सोचा इधर से गुजरूंगी तो मोहल्ले वाले मुझे देखकर घेरेंगे, मजबूर करेंगे। मुंह की मुरव्वत होती है बहन, मुंह छुपाने के लिए आज पहन लिया। कामरान ने एकदम से चौंक कर कहा, बुर्का? उसने बुर्के को देखा, फिर घड़ी को देखते हुए बोला, ओ गॉड, इतने दिनों से मुझे इतनी सी अकल नहीं आई। बुर्का? ये कहते ही वो दौड़ता हुआ बाहर आया। बाहर उसका बहनोई मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा था और उसकी आपस से बातें कर रहा था। सफा नंबर 33। उसने फौरन ही अपने दूल्हा भाई का बाजू पकड़कर एक तरफ खींचते हुए कहा, गजब हो गया। उसकी आपा और बहनोई ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया, मुझे फौरन जाना है। आप 1 से 100 तक गिनते रहे, मैं अभी आ रहा हूं। इस दौरान में मोटरसाइकिल स्टार्ट हो चुकी थी। वो मोटरसाइकिल पर बैठकर उसे स्टार्ट करते हुए उसकी रफ्तार बढ़ाते हुए मकान के अहाते से निकला। गली से गुजरता हुआ दूसरी गलियों को अबूर करता हुआ उस सड़क पर पहुंच गया जिसके बस स्टॉप पर वो आया करती थी। ठीक 9:45 हुए थे। एक बुर्के वाली गली नंबर 10 से चली आ रही थी। वो उसे गौर से देखने लगा, सरे पांव तक जायजा लेने लगा। क्या ये वही है? वो सड़क को पार करके बस स्टॉप की तरफ घूमकर चली गई। उसका अंदाज बता रहा था वही है, लेकिन उसे मुखातिब करने की जुर्रत ना हुई। बस आई और वो सवार होकर जाने लगी। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और उसके ताक़ुब में चल पड़ा। हर स्टॉप पर वो बस के पीछे रुक जाता था, तवज्जो से देखता था कितने बुर्के वालियां बस से उतरती हैं। यूं तो बुर्के एक जैसे होते हैं और ज्यादातर सियाह रंग के होते हैं, लेकिन डिजाइन जरा मुख्तलिफ होते हैं। उसने बुर्के के डिजाइन को और बुर्के वाली के सैंडल को तवज्जो से देखा था और उसकी पहचान रखी थी। आखिर वो अस्पताल के स्टॉप पर उतर गई। कामरान ने उसके बुर्के और सैंडल को पहचान लिया। एक तरह से और तस्दीक हो गई। वो बस से उतरने के बाद इधर उधर देख रही थी। कामरान पर नजर पड़ते ही फौरन तेज कदमों से चलते हुए अस्पताल के अहाते में दाखिल हो गई। उसकी अदाओं से घबराहट जाहिर हो रही थी। वो बार बार पलटकर उसे देखती थी, फिर तेजी से चलने लगती थी। कामरान ने अस्पताल के अहाते में पहुंचते ही एक तरफ गाड़ी खड़ी कर दी थी। सफा नंबर 34 और उसके पीछे चला आ रहा था। उसकी जुर्रत ने लड़की को और परेशान कर दिया था। वो अस्पताल के बरामदे में आई, एक बार पलट कर देखा, फिर तेजी से चलते हुए उस तरफ जाने लगी जहां मुख्तलिफ डॉक्टरों के कमरे थे। उनके बाद ऑपरेशन थिएटर था। उधर आम आदमियों को जाने की इजाजत नहीं थी। वो एक
कॉरिडोर में मुड़ गई। आगे जाकर पलट कर देखा तो वो नजर नहीं आया। उसने इत्मीनान की सांस ली। यकीनन अस्पताल के दरबान ने या वार्ड बॉय ने उसे इधर आने से रोक दिया होगा। वो एक बड़े से कमरे में आई। वहां कई नर्सें लिबास बदल रही थी या मेकअप दुरुस्त कर रही थी। जिनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी वो जाने की तैयारी कर रही थी, और जिन्हें ड्यूटी पर हाजिर होना था वो नर्स का मखसूस लिबास लेपतन कर रही थी। वो कमरे में आते ही बुर्का उतारने लगी। इस पहले ही सफेद लिबास पहन रखा था। उसने पहले ही सफेद लिबास पहन रखा था। नर्स बनने के लिए हल्की सी तब्दीली की जरूरत थी। वो आईने के सामने आकर सर पर वो रुमाल कैप पहनने लगी जो नर्सों के लिए मखसूस होता है। उसके करीब खड़ी हुई नर्स ने पूछा, क्या बात है, आज बहुत दिनों बाद फिर परेशान नजर आ रही हो? उसने मुझे पहचान लिया है। मुझे पहले ही शुबा था, बुर्के में भी पहचानी जाऊंगी। कितनी बार समझाया है, जब तुम चलती हो तो सबसे अलग नजर आती हो। आखिर मेरी चाल में क्या है? ये पूछो क्या नहीं है। जब चलती हो तो लगता है तलवार चल रही है। मजाक न करो, मैं बहुत परेशान हूँ। आज तो वो मेरे पीछे ही पड़ जाएगा। उससे डरती भी हो, उसका जिक्र भी करती हो, खुद को उससे बचाकर यहाँ तक ले आई हो, लेकिन ध्यान उधर ही अटका हुआ है। तुम गलत समझ रही हो, मेरा ध्यान मेरी ही तरफ है। इन हालात में जबान झूठ कहती है, चेहरा सच कहता है। यकीन ना हो तो आईने के सामने हो, खुद देख लो। सफा नंबर 35। उसने आईने में अपने आप को देखा। उसके साथ ही मंजर बदलने लगा। चूड़ियों की दुकान नजर आ रही थी। वो काउंटर के पास से पलट रही थी। यकबैक अपने सामने अजनबी को देखकर ठिठक गई। वो इतना करीब था जैसे सांसों में उतरना चाहता हो। कोई इतने करीब कभी ना आया था। पहले ख्वाब आते थे, धुंधला सा तस्वुर होता था। अब वो तस्वुर मुजस्सिम होकर ऐन निगाहों के सामने आ गया था। अब वो तस्वुर मुजस्सिम होकर ऐन निगाहों के सामने आ गया था। चेहरे पर शोखी, आंखों में इतनी गहरी चमक थी जैसे अपनी तरफ खींच रही हो, मोहब्बत से हुक्म दे रही हो, चली आओ, मेरी तरफ चली आओ, वरना झपट लूंगा। और वो यकबारगी सहम कर चीख पड़ी थी। आह! वो मंजर धुआं धुआं हो गया। आईने के फ्रेम में जैसे धुआं भर गया हो। जब वो छटने लगा तो दूसरा मंजर दिखाई दिया। मूना अपनी आपा और बहनोई के साथ एक कमरे में थी। उसका बहनोई खिड़की की तरफ से पलट कर कह रहा था, वो आ रहा है। उसके हाथ में बड़ा सा पैकेट है। यकीनन हमें बेवकूफ बनाने के लिए किसी मुरव्वत खान के नाम से तोहफा ला रहा है। उसकी आपा ने कहा, और आप वो तोहफा कबूल करना चाहते हैं? मेरी समझ में नहीं आया, आपको क्या हो गया? आज से पहले आपने एक पैसे की बेईमानी नहीं की, फिर ये क्या हरकत है? बेगम, मैंने जैसा समझाया है वैसे ही करना। जैसे ही आवाज दूं तुम कहना मुरव्वत खान का टेलीग्राम आया था, हमने पढ़कर कहीं रख दिया, इसके बाद वो गुम हो गया। मूना ने कहा, दूल्हा भाई, ये तो और ज्यादा बेईमानी होगी। आप इस तोहफे के बाद उससे स्टेरियो कैसेट रिकॉर्डर वसूल करना चाहेंगे? खलील अहमद ने मूना को गहरी संजीदगी से देखा, फिर बड़ी नरमी से कहा, तुम मेरे घर में जवान बेटी की तरह हो और मैं एक बाप की जिम्मेदारियों को महसूस करता हूँ। तुम्हें कोई भी पसंद करेगा तो मैं उसे हर तरह से परखने का, समझने का हक रखता हूँ। मुझे अपने तौर पर परखने दो। मैंने तुम लोगों को यकीन दिलाया है। उससे कैसेट रिकॉर्डर
वसूल करने के बाद तमाम चीजें उसके वालिदैन को वापस कर दूंगा। सफा नंबर 36। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, मैं जा रहा हूं, इससे बातें करता हूं। याद रखना इस बार उससे स्टेरियो कैसेट रिकॉर्डर का मुतालबा करना है। वो दरवाजे की तरफ जाने लगे। मोना उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे ये सब कुछ उसे पसंद ना हो, लेकिन बेबस हो। बड़ों के दरमियान कोई उसकी सुनने वाला ना हो। वो मंजर भी धुआं धुआं हो गया। जब धुआं छटने लगा तो एक ख्वाबगाह का मंजर दिखाई दिया। रात का वक्त था। खलील अहमद बिस्तर पर लेटे हुए थे। पास ही वो बड़ा सा पैकेट रखा हुआ था जो कामरान दे गया था। उसकी आपा कह रही थी, इसे खोलकर तो देखें, आखिर क्या है। इसमें जो कुछ भी है हमारा नहीं है, जिसका है उसके पास वापस जाने वाला है। मोना ने कमरे में आकर कहा, दूल्हा भाई, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं यकीन से कहती हूँ, कल वो जाने कितना कीमती कैसेट रिकॉर्डर खरीद कर ले आएंगे। जब सोचती हूँ ये सब मेरे लिए हो रहा है तो बड़ी शर्म आती है। प्लीज आप इसे वापस कर दें। मैं भी यही सोच रहा हूँ। क्या जरूरी है कि इसे रिकॉर्डर खरीदने पर मजबूर करें। इतनी आजमाइश काफी है। मैं उसके वालिद से कल सुबह ही मिलने जाऊंगा। मंजर फिर धुआं धुआं सा हो गया। जब वो धुआं छटने लगा तो खलील अहमद की कमर झुकी हुई नजर आई। वो सोफे की पुश्त से टेक लगाकर झुके हुए थे। बड़े ही दिल बर्दाश्ता होकर कह रहे थे, मुझे इन लोगों से ऐसी तवक्को नहीं थी। एक तो उनका माल वापस करने गया, ऊपर से चोर कहलाया। आपा ने कहा, मैं उसी दिन के लिए मना करती थी। क्या जरूरत है इस लड़के को लिफ्ट देने की। सफा नंबर 37। वो एक गहरी सांस लेकर बोले, किसी का रास्ता रोकना दानिशमंदी नहीं है। वो मोना की तरफ बढ़ रहा था। जवानी दरिया की रवानी होती है। उसका रास्ता रोको तो वो रास्ता बदल कर दूसरी तरफ बहती है। वो हमारा पता पूछ रहा था, हमारे घर आना चाहता था। अगर कोई सीधे रास्ते से आना चाहे तो उसके मुंह पर दरवाजा नहीं बंद करना चाहिए, वरना आने वाले दीवारों में शगाफ डालकर आ जाते हैं। अलबत्ता उसे यहाँ तक बुलाने का अंदाज जुदागाना था। वो खुद को दानिशमंद और मुझको अहमक समझकर पता मालूम कर रहा था। मैंने खुद को दानिशमंद और उसे अहमक समझकर उससे ये ड्रामा शुरू किया। मेरी नीयत साफ थी। मैं इससे तहाइफ वसूल करने के बाद उसके वालिदैन को वापस करना चाहता था, ताकि उसे नसीहत हो और वो आइंदा जिंदगी के मामलात में सीधा रास्ता इख्तियार करे, सीधी तरह दरवाजे पर आए और दस्तक दे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये खेल दयानतदारी से शुरू करूंगा और बेईमान ठहराया जाऊंगा। आपा ने कहा, एक तरह से आपने अच्छा ही किया। इस तरह उनकी कमजोरी का पता चल गया। अब ऐसे लोगों पर लानत भेजिए। मोना गुमसुम खड़ी सोच रही थी। अचानक मंजर बदल गया। वो गली की नुक्कड़ पर थी और दूसरी तरफ कामरान मोटरसाइकिल के करीब नजर आ रहा था। उसे देखते ही उसने नफरत का इजहार किया और गुस्सा दिखाते हुए सड़क पार करते हुए जाने लगी। आईने के फ्रेम में मंजर बदलते जा रहे थे। लोगों ने कामरान के गिरेबान को पकड़ लिया था। उसकी आंखों में इल्तिजा थी। वो कह रहा था, मुझे सफाई का मौका दो, मेरी कोई खता नहीं है। मंजर फिर बदल गया। वो बस के साथ मोटरसाइकिल की रेस लगा रहा था और उसे देखता जा रहा था। वो परेशान थी। सहमी हुई नजरों से कभी उसे देखती थी, कभी नजरें चुरा लेती थी। वो बुलंद आवाज से कंडक्टर को मुखातिब करते हुए कह रहा था, जब मैं किसी के साथ चलने का इरादा कर लेता हूं तो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता हूं। अगर वो
भागना चाहे, दौड़ना चाहे तो उसके साथ दौड़ना भी जानता हूँ। सफा नंबर 38। और वो बस की तेज रफ्तारी के साथ अपनी तेज रफ्तारी का सबूत देता जा रहा था। मंजर बदल गया। वो घबराए हुए अंदाज में अस्पताल के कमरे में पहुंची। वहां नर्सें अपना लिबास तब्दील कर रही थी। उसकी इसी सहेली नर्स ने पूछा, क्या बात है? वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आज उसने मोटरसाइकिल पर पीछा किया। यहां भी यकीनन आता ही होगा। परेशान क्यों होती हो? तुम उसी कमरे में रहो, आज मैं तुम्हारी ड्यूटी संभाल लूंगी। मोना ने इत्मीनान की सांस ली और कुर्सी पर बैठ गई। मंजर फिर बदल गया। अब वो अपने घर में थी और एक सियाह बुर्का पहने हुए थी। उसकी आपा कह रही थी, यही मुनासिब है, किसी के मुंह लगने से बेहतर है अपने बचाव की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए। अपनी इज्जत अपने ही हाथ होती है। वो बुर्का पहनकर गली के नुक्कड़ पर पहुंची। देखा तो कामरान मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ उसके मकान की तरफ, उसकी गली की तरफ देख रहा था, लेकिन इस बुर्के वाली को नहीं पहचान रहा था। उसके बावजूद वो घबरा रही थी, जैसे पहचान ली जाएगी। वो सड़क पार करके बस स्टॉप की तरफ जाने लगी। मंजर फिर बदल गया। वो बुर्का पहने हुए चूड़ियों की दुकान में थी। चूड़ियां पसंद कर रही थी और बार बार सर घुमाकर बाहर की तरफ देख रही थी। कामरान खड़ा हुआ था और वो हर उस लड़की को देख रहा था जो चूड़ियों की दुकान में दाखिल हुई थी या इस दुकान से बाहर निकलती थी। फिर वो रह रहकर मायूस हो जाता था। मंजर बदल गया। वो अपनी गली से निकलकर सड़क पार करते हुए बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। कामरान नजर आ रहा था। अब उसका शेव बड़ा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। सफा नंबर 39। चेहरे से वहशत बरस रही थी। वो बहुत परेशान था। यूं लग रहा था जैसे अपना सब कुछ लुटाने के बाद किसी मोहताज की तरह सड़क के किनारे सवाली बनकर खड़ा हो गया हो। मूना पहले बुर्का पहनकर अस्पताल आई थी। फातिहाना अंदाज में मुस्कुराती हुई बुर्का उतारती थी, जैसे दुश्मन को शिकस्त देकर आ रही हो। अब वो निढाल सी होकर अस्पताल के कमरे में दाखिल होती थी। बहुत थके हुए अंदाज में बुर्के को उतारती थी और सोचती रह जाती थी, और यूं सोचने के दौरान फिर चूड़ियों की दुकान के पास पहुंच जाती थी। इस बार वो दुकान के अंदर नहीं गई थी, दूर ही से देख रही थी। कामरान वहां खड़ा हुआ दुकान में आने जाने वाली हर लड़की को देख रहा था और मायूस हो रहा था। उसकी निगाहें उसे तलाश कर रही थी। वो मौजूद थी मगर पर्दे के पीछे थी। वो बुर्का एक बंद दरवाजा था। सिर्फ दरवाजा खुलने की देर थी। वो नजर आ जाती तो दीवाना दौड़ा चला आता, लेकिन घर अपना होता है, दर अपना होता है, मर्जी अपनी होती है। उसकी अपनी मर्जी थी कि वो दरवाजा खोले या बंद रखे। उसका हाथ दरवाजे तक जाता था। वो हिचकिचाती थी, फिर हाथ वापस आ जाता था। वो दरवाजा खोलते खोलते रह जाती थी। आईना साफ हो गया। तमाम मनाजिर धुल गए। वो खुद को आईने में नर्स के रूप में देख रही थी। फिर वो आईने की तरफ से पलट कर जाने लगी। उसकी सहेली ने कहा, तुम जा रही हो और तुम्हारा वो मोटरसाइकिल पर तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पहुंच गया है। वो जाते जाते दरवाजे पर रुक गई, फिर कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गई, जैसे अज़म कर लिया हो कि दरवाजा खोल देना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। वो कमरे से बाहर निकली, एक कॉरिडोर से होती हुई दूसरे कॉरिडोर में आई, फिर छिटक गई। वो सामने खड़ा हुआ था।
चंद लम्हों तक दोनों साकित रहे। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं। फिर वो नजरें चुराकर उससे कतराते हुए जाने लगी। वो उसके बराबर चलते हुए बोला, सफा नंबर 40। मुझे सफाई का मौका दो। मैं रातों को सो नहीं सकता। मेरी नींद उड़ गई है। मेरी भूख मर गई है। मैं आहिस्ता आहिस्ता मरता जा रहा हूं। पार्ट 3 यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। किताब इजाजत का बाकी हिस्सा पार्ट 4 पर समाप्त फरमाइए। शुक्रिया।